Welcome students. This is worksheet number 32 of science class 9 English medium. We have studied in earlier videos. If you can see, I have explained you distance, displacement, physical quantities, different physical quantities, vector quantities, scalar quantities. Basically it is chapter 8 of your syllabus in your NCERT book. So you can see this earlier videos on the link I have provided you. This is a channel. You can subscribe this channel and press the bell icon for further videos of your worksheets and lessons of your syllabus. And we have also discussed earlier the motion, rectilinear motion, circular motion in earlier videos. If you haven't seen, you can see there, watch them, and you can understand, make the notes from the videos from important topics. And then also you can see the previous video I have discussed about uniform motion and non-uniform motion. The last video is of acceleration, where we have discussed about uniform and non-uniform motion. Before that we have discussed about velocity and speed, differences between them and similarities of them. Then we have discussed there the formula to calculate acceleration, negative acceleration, positive acceleration. Negative acceleration is also known as deceleration. So you can see from the previous videos. Then connecting the same, we have now come to the topic. We have also studied some graphs. So in this topic we will be studying distance time graph. Basically you have two types of graphs in your syllabus: distance time graph or displacement time graph, and speed time graph or velocity time graph. So the ratio of both these, distance and time, the ratio of these, when we divide distance by time we get speed, or displacement by time we get velocity. So the slope means this slope, this always gives the speed. Distance time graph, the slope of distance time graph, distance is on y-axis and speed time is on x-axis. See here, I think there is some misunderstanding. Yeah, the time is given in m. It is not m, it will be hours. Distance is in kilometers and time will be in hours, I think. So you can correct it. If time seconds and distance is meter, then the unit will be meter per second. So we know that linear motion means motion in a line. This is also a line, this is also a line. When a object is moving in a straight line, then it is a linear motion. In earlier video you can see what is uniform motion and non-uniform. Uniform means same, non-uniform is changing. आप स्कूल आते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, बोलते हैं यूनिफॉर्म पहन के आओ। ड्रेस और यूनिफॉर्म में क्या अंतर है? ड्रेस तो अलग अलग हो सकती है, आप कपड़े कोई भी पहन सकते हैं। यूनिफॉर्म होगी सबकी एक जैसी हो, ड्रेस तो सब पहनते हैं पर एक जैसी है तो वो यूनिफॉर्म है। मतलब एक समान एक जैसी रहे, दैट इज़ यूनिफॉर्म। अलग अलग चेंज होती रहे तो वो है नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन में भी, मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किससे वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, किससे नॉन यूनिफॉर्म? तो अगर तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है टाइम के साथ तो वो यूनिफॉर्म है। सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर उसकी डिस्टेंस अलग अलग होती है, कभी वो तेज़ चलता है कभी धीरे चलता है, इसका मतलब यही है। अगर सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट हम 1 आवर में देख रहे हैं, 1 आवर कोई भी आवर हमने उठाया, उस 1 आवर में देखा तो उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था। फिर कभी 1 आवर में फिर देखी उसकी मोशन तो उसने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर। तो इसने 10 किलोमीटर पर आवर थी यहाँ पे स्पीड, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। फिर दोबारा देखी तो 1 और आवर में उसने 20 किलोमीटर करी। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी वो 1 आवर में 20 किलोमीटर
ट्रैवल करता है, कभी 30, कभी 10। तो स्पीड भी चेंज हो रही है। 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर है। इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं। और नेचुरली हम ऐसे ही करते हैं, कभी हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। हमेशा तो एक स्पीड से चलना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलती हैं। स्पीड अगर बढ़ भी रही है तो भी वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है सेम टाइम में, रेस्ट पे नहीं, रेस्ट पे है तो वो कुछ ट्रैवल ही नहीं कर रहा, फिर तो मोशन में है ही नहीं, वो रेस्ट पे है। लेकिन मोशन में भी दो तरह की हैं। जब सेम इंटरवल, जब भी हम किसी भी आवर में देख रहे हैं, सेम इंटरवल में सेम वो ट्रैवल करे डिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट करे तो, अब यहाँ पे चलो किलोमीटर लिए, मिनट लिया हुआ है, जनरली हम आवर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिया है आपने, देखो 0 मिनट से स्टार्ट हुआ 20 मिनट्स। फर्स्ट 20 मिनट में देखें तो हम देखेंगे कैसे ग्राफ को, ये ग्राफ हम बनाया कैसे, पहले ग्राफ बनाते हैं ना क्वांटिटी से। तो फर्स्ट 20 मिनट्स, फिर यहाँ 40 मिनट्स, ऐसे अलग अलग टाइम पे देखें। तो हम पहले यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ग्राफ, थोड़ा आपको ये समझने वाली चीज़ दी हुई है। तो ये आप देखिए 20 के बाद ये है 20, तो एक डिवीज़न जो है वो 2 को दिखा रही है आपकी। ये ध्यान रखें, 10 डिवीज़न होती हैं ग्राफ में। अब ग्राफ पेपर लेके बना के देखें इसको। तो अगर ये इसमें 10 डिवीज़न्स हैं, बीच में 10 डिवीज़न हैं, तो 10 डिवीज़न से आपको 20 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब 1 जो एक ये सिंगल छोटी लाइन है वो कितना दिखा रही है, 2। तो 20 के बाद आप काउंट कर लें कितने पे आ गए यहाँ पे। 20 के अगर काउंट करेंगे 1 2 इस तरह से काउंट करते हुए आप देखेंगे तो ये आपका 4th डिवीज़न है जो यहाँ दिखाई हुई है। इट मीन्स 28। यहाँ 0 के बाद आपको कौन सी डिवीज़न पे आप जा रहे हैं, 0 के बाद आपको देख लिए यहाँ पे 1 2 ऐसे काउंट करेंगे तो ये आपकी आएगी डिवीज़न नंबर। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी 20 है, तो ये 10th है, 9th, 8th और 7th के बीच में कहीं ये डिवीज़न है। ठीक, तो आप इसको भी देख सकती हैं, ये आपकी 15 के अराउंड हो गई। इस तरह से अलग अलग टाइम है। अब यहाँ देखें आप टाइम, यहाँ ये आपकी डिवीज़न जो है 38 के आसपास। इस तरह से आपकी ये डिवीज़न्स दिखाई गई हैं कि कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप कहीं भी किसी भी टाइम से जब आप यहाँ से खींचेंगे एक लाइन आप यहाँ से खींचें और एक लाइन आप यहाँ से खींचें, ये अगर 2 लाइन आप खींचेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसको, ये क्या चीज़ है, ग्राफ कैसे देखा जाता है। तो अब हम थोड़ा सा इसको थ्योरी को देखते हैं, इसमें क्या समझाया गया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो आपको बताया कि 1 आवर है, हमने 1 आवर में देखा वो चली 10 किलोमीटर लेट्स सपोज। फिर हमने 2 आवर्स, सेकेंड आवर या 1 आवर के बाद देखा, दोबारा 1 आवर के बाद देखा, फिर 10 किलोमीटर अगले 1 आवर में, अगले 1 आवर में फिर देखा, फिर 10 किलोमीटर। इसका मतलब चल तो रही है, और इसकी स्पीड हमेशा कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है। अगर ये बी यहाँ हो जाए 20, यहाँ हो जाए 40, तो ये चेंज हो रही है स्पीड, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो आपको समझ आ गया, यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं, चाहे वो मिनट में लो, चाहे आवर में लो, चाहे सेकंड में, 1 सेकंड लो, 2 सेकंड लो। अगर 2 सेकंड में ले रहे हैं तो 2 सेकंड में सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ये सेम स्पीड चलेगी हमेशा, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड बाय, उसको हम ग्राफ से दिखा सकते हैं। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस पे लिया है, टाइम एक्सिस पे। यूनिट उसके जो टाइम का यूनिट है, कुछ भी ले सकते हैं जो टाइम का आप ले रहे हैं उसमें, ऐसे डिस्टेंस का यूनिट ले सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, अगर आप ये वाली लाइन बनाओगे, आपने पीछे पढ़ा है, तो इसका मतलब तो ये है कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस उतनी ही है। तो इसका मतलब ये रेस्ट पे है, टाइम के साथ कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं है, तो रेस्ट पे है। तो चेंज तो आ रहा है, देखो ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। कुछ कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं तो सेम स्पीड आएगी। जितने भी टाइम बाद यहाँ देखो, फिर वही इसको डिवाइड करोगे तब सेम, यहाँ से टाइम लोगे, यहाँ से डिस्टेंस लोगे, इस डिस्टेंस टाइम को ग्राफ डिवाइड करोगे, सेम स्पीड। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, यस, फॉर यूनिफॉर्म
मोशन। तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे ग्राफ से? ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं जब ये कर्व्ड लाइन होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म। कर्व्ड लाइन कैसे होगी? ऐसे, ऐसे हो सकती है, या कर्व कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है कि पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई, ऐसे भी हो सकती है कर्व। तो ये कर्व लाइन होगी तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम ये देख रहे हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। स्लोप क्या होती है? ये जो इसका ये स्टीप कितनी ज़्यादा है, स्लोप कितनी कम है। तो ये आप यहाँ से एक लाइन खींचोगे यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा इतने टाइम पे ये कितनी डिस्टेंस पे थी, इतने टाइम पे अगर लेनी है तो कितनी डिस्टेंस पे है, इतने टाइम में लेना तो कितनी डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हम अलग अलग डिस्टेंस दे सकते हैं। तो अलग अलग टाइम इसमें इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इतने टाइम में कितनी, इतने टाइम में। तो ये होती है स्लोप। हायर द स्लोप, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। हायर स्लोप जैसे ये हो जाए, ये या स्लोप इसकी ज़्यादा है, एकदम से बढ़ रही है देखो, इसका मतलब स्पीड भी क्या है इसकी? ज़्यादा है। यहाँ क्या होगा? स्पीड देखो, यहाँ टाइम तो कम बढ़ रहा है और टाइम इतना सा बड़ा और डिस्टेंस इतनी होगी, टाइम इतना बड़ा डिस्टेंस इतनी होगी। यहाँ स्पीड क्या है? ज़्यादा, डिस्टेंस इतना बढ़ गई और टाइम इतना सा बड़ा है। यहाँ इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस नहीं आई। तो जितनी स्लोप ज़्यादा होगी, जितना सीधा होगी वो, अगर और कम देखनी है, इससे कम कैसे हो सकती है? अगर स्लोप से कैसे पता लगेगा? अगर ऐसे है तो ये कम है, स्लोप इसकी कम है, कम ढलान है ना, ढलान स्लोप मतलब ये ढलान, इसकी ढलान कम है। तो आप यहाँ से देखो इसने इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जबकि सेम टाइम में ये दूसरा वाला लाइन देखें तो कहाँ पहुँच रही है? यहाँ पे। तो ये तो इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इतने टाइम में, ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इतने सेम टाइम में। तो स्लोप जिसकी ज़्यादा है, स्पीड भी उसकी ज़्यादा है। तो आप निकालोगे कैसे? अगर इससे हमने निकालना है आपको, तो हम उस पर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे अगर स्पीड निकालनी है स्लोप टाइम ग्राफ से। जैसे यहाँ पे हमने इन्होंने पॉइंट लिया है ए और पॉइंट बी ग्राफ के ऊपर, उन पॉइंट से हम परपेंडिकुलर खींच लेंगे लाइन, सीधी लाइन परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री वाली एंगल। तो ये दो पॉइंट पे हमने लिया है अलग अलग डिस्टेंस। ये दो पॉइंट आपका टाइम कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए। और अगर ए से देखें तो ए जो पॉइंट बनाया है वो आपको दिखा रहा है टाइम, इधर यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, और ऊपर सेम ए पॉइंट से इधर डिस्टेंस दिखा रहा है। तो इससे हम इसको ले लेंगे, ये तो एक टाइम डिस्टेंस हो गया। सेम हम दूसरा पॉइंट से ले लिया और उनका डिफरेंस निकाल लिया, तो आपको स्लोप मिल जाएगी। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए। ये एक्स एक्सिस से पैरेलल टू एक्स एक्सिस लोगे तो ये डिस्टेंस है। ये कितनी डिस्टेंस है? डिस्टेंस में देखो यहाँ 10 डिविजन्स आपको 10 में ही दिखा रही हैं, तो एक एक डिवीज़न की एक है। तो 20 से हम काउंट कर लेंगे कितनी आगे है ये, मान ये 28 पे है समझ लो, क्योंकि उसके बाद 29 30 दिख रहा है, एक बीच में डिवीज़न है। तो यहाँ से देखेंगे टाइम से तो ये कहाँ कोरस्पॉन्ड करती है? एक पहले ना, ये है आपकी 20 के बाद और 40 के बीच में। आप देखें दो दो की डिवीज़न थी, ये आपने देखा, ये आपको देखना है स्केल दो दो की डिवीज़न है। तो ये 9th डिवीज़न पे आती है। तो 9th डिवीज़न का मतलब है दो दो के हिसाब से, यहाँ पे 20 तो ये हो गए, 22 24 दो दो से गिनेंगे तो 9th पे आके होगा 38। तो यहाँ इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। नहीं, आपका यहाँ आएगा जैसे ये ए में देखो, ए कहाँ पे? यहाँ है, तो उस हिसाब से इनको निकाला गया है। ऐसे ही बी से लेंगे, दीज टू पॉइंट जो हैं लाइन मीट एट सी एंड मेक ए ट्रैंगल ए बी सी। अगर आप यहाँ देखें, ये इनकी ट्रैंगल है ए बी सी, ए बी सी ट्रैंगल है। इसमें जो ए सी है वो टाइम इंटरवल दिखा रहा है आपको, ये वाला, कि ये टाइम यहाँ से इस टाइम तक कितना टाइम लगा। यहाँ 56, क्योंकि 40 के बाद ये 8वें पे आता है, 40 प्लस 40 तो यहाँ पूरे हो गए। उसके बाद दो दो से काउंट करोगे 8 डिवीज़न, तो 8 इंटू 2 16। तो 40 के बाद 41 42 आएगा, 41 नहीं आएगा क्योंकि दो दो की डिवीज़न है इसमें। 20 से 10 जो हैं 10, ये 10 लाइनें जो हैं 20 दिखा रही हैं, तो एक लाइन 2 दिखाएगी। तो 40 के बाद 42 पहले पे, दूसरे पे 44 थर्ड पे 46, फोर्थ पे 48, 5 पे 40, 5 पे 50 हो जाएगा, 2 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम 8th पे जाएंगे तो ये होगा 56। तो टाइम हो गया 56, जो T2 है ये वाला, बी वाला। तो टाइम आगे बढ़ रहा है। पीछे वाला पहले वाला टाइम कितना हो गया? पहले वाला टाइम हो गया 40 के बाद, 40 के बाद फर्स्ट डिवीज़न पे 2,
क्योंकि दो दो से बढ़ रहा है। 40 के बाद देखिए आप ए कहाँ आ रहा है, एक से जो लाइन खींची है यहाँ आ रही है, तो 42, और ये है आपका 6, ये आपकी 8th रीजन है, दिस इज़ 56। ये तो हो गया टाइम का गैप 56 और 42, T2 माइनस T1। ऐसी अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस आपको यहाँ से दिखाई देगी, ऊपर से डिस्टेंस यहाँ देखें, देखो ये है आपकी ऊपर से इधर इधर इसके ऊपर लाइन खींच रहा हूँ मैं S2, ये 1 डिवीज़न है। यहाँ 30 40 तो 10 डिवीजन में 10 का गैप है, तो एक डिवीज़न में एक। तो ये जो आप देखें, ये लाइन जो जा रही है आपकी बी से जो जा रही है, ये 8th पे जा रही है। बी से जो लाइन जा रही है यहाँ पे आप देखेंगे, बी से आपकी लाइन 8th पे जा रही है, 8th, ये 8th। तो ये 38 हो गया डिस्टेंस, ये 38 है बी वाली, और ए वाली डिस्टेंस देख लिया, ये 30 से पहले है दो, तो ये 28 है। तो 38 माइनस 28 अपॉन टाइम मिनट में 56, मिनट यहाँ से पता लगता है, ये एम लिखा है, एम मिनट में है, मीटर का नहीं है, मिनट ऐसे लिखना चाहिए, MIN लिखना चाहिए यहाँ पे मिनट्स। तो ये हो गया 10, इसने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये इतने ट्रैवल किया ना इसने, कोरस्पॉन्डिंग देखे तो यहाँ से यहाँ तक गया, 28 से 38 तक पहुँच गया, मीन्स 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 42 और 56, तो 56 माइनस 42 14, तो कितना आ गया इसकी स्पीड, 10/14। 10/14 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 0.71 किलोमीटर पर मिनट। तो ये इसकी स्पीड आ गई ग्राफ से। तो आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं, देखो ये देखिए, द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए कार फ्रॉम पॉइंट, देखिए आप अलग अलग पोजीशन दिखा रहा है कार की, ये टाइम सेकंड में है, यहाँ पे डिस्टेंस किस में है, मीटर्स में। तो यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट हम देखें ए से बी तक, ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसका टाइम के साथ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। देखिए यहाँ 4 पे 2, यहाँ 5 पे देखो 3, हर एक सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है वो। तो ये आपको समझ आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। उसके बाद ये बी के बाद देखिए, यहाँ 5वें सेकंड के बाद बी पे आके जब 7 सेकंड तक 6 सेकंड तक देखो, तो ये सेम डिस्टेंस पे है, कहाँ पे, 3 पे। इसका मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, टाइम तो बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है। भैया हम रेस्ट पे किसको कहते हैं, जो टाइम के साथ चलता नहीं है, चल नहीं रहा, जो चल नहीं रहा वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो ये रेस्ट वाली मोशन हो गई इसकी। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये BC, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब हो रहा है इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका मतलब वो ट्रेवल नहीं कर रहा। तो आप ये समझ पा रहे हैं इसको, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये बात। तो आगे आपका फिर BC में, इसका मतलब ये BC जो दिखा रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है आपको जब रेस्ट पे है। फिर देखिए आप 7 सेकंड पे ये 3 पे है, 8 सेकंड में अगर आप यहाँ से पैरेलल लाइन खींच के देखें तो ये 5 पे पहुँच गया। अब 9 सेकंड में ये 7 पे पहुँचा है। तो ये फिर उसके बाद फिर यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म कैसे है, अब एक एक सेकंड में ये 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक सेकंड में 2 मीटर, 7 to 8 जाने में एक सेकंड में 2 मीटर, 8 से 9 जाने में एक सेकंड में फिर 2 मीटर, 5 से 7 चला गया, यहाँ पे 2 मीटर हो गया, यहाँ 8 से 9 गया, और यहाँ 7 से 5 से 7 2 मीटर फिर ट्रैवल की, हर एक सेकंड में 2 मीटर। पहले हर एक सेकंड में 1 मीटर कर रहा था। इसकी स्लोप देखो, ये ढलान स्लोप ऐसे, ये कम है, यहाँ सीधा ऐसे गिरेगी वो चीज़, सीधी स्लोप है। देखो तो जितनी स्लोप सीधी होती जाएगी आप देख रहे होंगे, उतना ही ये देखो, ये स्लोप सीधी है बिल्कुल ऐसे, और ये थोड़ी सी ऐसे है, तो स्लोप इसकी ज़्यादा है। यहाँ स्पीड फिर भी यूनिफॉर्म है। अगर ये कर्व होती है ऐसे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रैवल कर रहा है। स्पीड चाहे बढ़ गई है, डिस्टेंस ज़्यादा कर रहा है ट्रैवल एक एक सेकंड में अब, लेकिन यूनिफॉर्म है। देखो 7 to 8 जाने में, 7 to 8 जब टाइम हुआ तो ये 7 पे 3 पे था और 8 में 5 पे, तो 2 मीटर तो ट्रैवल किया। नेक्स्ट में देखें 8 to 9 जाने में भी, यहाँ से लाइन खींचोगे तो ये 2 मीटर, 5 पे था 8 में, और यहाँ 7 पर आ गया, तो 2 मीटर तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ गई, यहाँ हो गई 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ थी 1 मीटर पर सेकंड। जितनी स्लोप देखो, ये स्लोप ज़्यादा है, इसकी ढलान ज़्यादा है, इसकी ढलान स्लोप ऐसे स्टीप नहीं है, थोड़ी कम है। तो ये समझ गए आप। तो ये अलग अलग तरह के ग्राफ आप देख रहे हो इसमें।
बिलो मेंशन यहाँ पे आपको अलग अलग ग्राफ दिखाए गए हैं। ग्राफ ए आपको क्लियर एग्जाम में पूछते हैं, बताइए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ भी ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, कर्व नहीं हो रही है, ऐसे मुड़ नहीं रही कहीं पे ऐसे। देखो ऐसे मुड़ने का मतलब ये स्ट्रेट है, ऐसे अगर हम सीधा जाएंगे स्ट्रेट है, ऐसे कर्व होगी तो उसको कर्व लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है बी में, ये नॉन यूनिफॉर्म है, कभी देखो ऐसे हो गई कभी इधर हो गई, ये स्ट्रेट नहीं है। अगर आपको इसकी लाइन पे चलना है तो आपको मुड़ना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा, यहाँ सीधा चल सकते हो ऐसे। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ देखो कभी किसी टाइम में ये उसी टाइम में ये कम ट्रेवल कर रहा है, अगर सेम टाइम में देखे इतनी डिस्टेंस पहुँच गया, कितना गैप हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट की दिखा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो आप टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस सेम है। ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पे खड़ा है, ये यहीं चलता जा रहा है, यहीं टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ से देखो पीछे से, लेकिन डिस्टेंस उसी पॉइंट पे उसी पॉइंट पे उसी पॉइंट के सामने आ रहा है ये बार। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पर। तो ये आप समझ गए होंगे ग्राफ से। फिर आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार, कैलकुलेट स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको स्पीड निकालनी है। आप कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए। मान लीजिए आपने पॉइंट ले लिया ये 4 के सामने देखिए 40, 3 के सामने 30। तो आपके पास डिस्टेंस आ गई S2 40, S1 जो पॉइंट आपने लिए हैं, जैसे उसमें हमने पहले बताया था, जैसे तो ये वाली आप इसके सामने ले जा सकते हो, ये ट्रायंगल बन रही है, तो इसकी स्लोप निकालोगे तो टाइम निकल आएगा। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, ये इसके सामने 40 S2 माइनस 30 S1 डिवाइड बाय दिस 4, इसके सामने 4 टाइम है, इसके सामने टाइम कितना है इनिशियल 3 T1, तो 10/1, दैट इज़ 10। डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड। आप कोई भी 2 पॉइंट ऐसे लेके उसको डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें 2 डिफरेंस आपको बताने हैं। द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज कर्व्ड। इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है ऑब्जेक्ट का। फॉलोइंग कंडीशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, चेंज नहीं हो रही इसकी। ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे ये आया हुआ है, बार बार चेंज हो रही है इसमें। आप दूसरा भी बना सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम लेके यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस। तो कैसे बनेगा ये ग्राफ, ऐसे कर्व्ड ग्राफ ये बना सकते हैं। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज स्पीड ऑफ स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या शो करती है, स्पीड। चलो, तो आप समझ गए होंगे टॉपिक को, आप ध्यान से इसको पढ़िए, अच्छा टॉपिक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।